Good morning, dear students. This is Dr. Sonika Kochar from Nagpur Institute of Technology. Today we are going to learn two topics in chemistry, biomolecules and coordination compounds. Biomolecules we are going to study in little detail because I feel that this unit biomolecules has something to do with your body. Okay, in this time of COVID-19 pandemic, I feel that this unit you should be understanding, you should understand your body, how to build up, how to boost your immunity. I definitely feel this unit biomolecules will help you in some way or the other. So let's get started. First topic which we are learning is biomolecules. So what are biomolecules? Biomolecules are lifeless substances which combine in specific way to give rise to life. When I say they themselves are lifeless, okay, but when they combine, they give rise to life. As you can see, when I say biomolecules, okay, let us start from living organism. Okay, we are living organism, our body is made up of organs, then organs are made up of tissues are made from cells are made from cell organelles, and these cells organelles are made up of biomolecules. What are biomolecules? They can be lipid, they can be fat, they can be nucleic acid, they can be carbohydrates. So this all today we have to learn. What is the role of carbohydrate, proteins, nucleic acids, lipid, enzymes, hormones in our body? How these molecules can help us to boost our immunity. Okay. Moving ahead, let us see what are the major complex biomolecules of cell and what are their functions. Like protein, when we say proteins are the basic structure and function of the cell, they are made from amino acids. DNA building block is deoxyribonucleic acid and the main function is heredity. RNA ribonucleotide, main function is protein synthesis. Polysaccharide, that is starch, carbohydrates, they are storage form of energy. Lipids, they show form of energy to meet long-term demands. Okay, this is a general explanation about what role they play in our body. Hence, I have purposely included this unit in today so that you can understand that protein, carbohydrate, fats, lipid, they have role in your body. Okay, all this is the function. When your body is fit, when your body immunity system will be strong, when you include all these things in your body, in your diet. Okay. Now let us start with simple biomolecule, that is carbohydrate, right? You need not learn that definition which is written. In general, we can say carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones or compound which give this on hydrolysis. Okay. Now the other term for carbohydrate is saccharide. How much energy we get from carbohydrate? We get 4 calories per gram. Okay, from carbohydrate and proteins, we get 4 calorie per gram of energy, whereas when we speak for fats, we get 9 calorie per gram energy. Okay. Now, cell walls of bacteria plant is made up of cellulose. No, let us avoid this statement over here. Then let us learn how can we classify carbohydrates. So we can classify carbohydrates on number of ways. First, classification can be on the basis of their behavior on hydrolysis. It means on hydrolysis, carbohydrate gives what? Second can be on the basis of whether the carbohydrate is reducing or they are non-reducing sugar. Third classification can be on the basis of their solubility, whether they are soluble in water or not, whether they are sweet in taste or not. Okay. So let us see in this classification. I told we can classify them on the basis of hydrolysis, on the basis of their reducing property, on the basis of their solubility. Let us see. So first classification on the basis of hydrolysis means when carbohydrate hydrolyzes, on the basis of this we can classify carbohydrate as monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. When I say monosaccharide means these are the basic unit of carbohydrate which you cannot hydrolyze further. Okay. When we say oligosaccharide means these on hydrolysis can give 2 to 9 saccharide units. And when we say polysaccharide means these are the high molecular weight compounds. Okay, these on hydrolysis can give more than 9 saccharide units on hydrolysis. Then next I said they can be classified on the basis of the reducing property.
So monosaccharides and oligosaccharide both are reducing sugar, whereas polysaccharide is a non-reducing sugar. Am I clear? Monosaccharide and oligosaccharide, they are reducing sugar, whereas polysaccharide is a non-reducing sugar, right? Now, other classification I told, whether they are soluble in water and whether they are sweet in taste, right? So next classification mein, monosaccharides, they are classified in sugars, means they are sweet in taste. When I say oligosaccharide, they are also sugars, they are sweet in taste. When we say for polysaccharide, they are non-sugars, so they are tasteless, right? Now in this box, I have written one exceptional case except sucrose. When we say monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide, and I say monosaccharide and oligosaccharide are reducing sugars, okay? So I have told there is one exception, and that is sucrose, right? One of the exception means sucrose is non-reducing in spite it is a sugar. Am I clear with this? Okay. Because this is definitely going to be asked in your MCQ. When we say the term reducing means what? When I say it is reducing, it is non-reducing. When we say reducing means whether the aldehyde group is free or not for giving the reaction, right? In that sense, we'll understand this thing further in the next slides. Then same thing, and I said ki monosaccharides, oligosaccharide, polysaccharide. When I say monosaccharide will give only one saccharide unit, oligosaccharide can give 2 to 9 saccharide units, polysaccharide can give more than 9. Okay, many. Poly means many saccharide groups. So let us see oligosaccharide on what are the examples which we can include under oligosaccharide, what example we can include under monosaccharide, and the examples under polysaccharide. Okay, so this next slide relates to examples under mono, oligo and polysaccharides. So under monosaccharide means on hydrolysis gives only one sugar unit. We can include example of glucose, fructose and galactose. When we say disaccharide means this on hydrolysis will give only 2 saccharide unit. So examples which are included under disaccharide are sucrose, lactose and maltose. When I say oligosaccharide means 2 to 9 or 10, then we can include example of raffinose and stachyose. When we say poly means more than 10 or more than 10, under this we include example of starch, glycogen, cellulose. I have also written 3 more example over here: insulin, pectin and dextrin. These are also included under polysaccharide. Sometimes in your MCQ question, it is being asked, insulin is a monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide or polysaccharide. At that time, you need to understand that insulin, pectin, dextrin, cellulose, glycogen, starch, they are all included under polysaccharides. I hope I am clear till this. Let us proceed further. Let us understand this one by one: monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. Starting with monosaccharide, right? Monosaccharide we classify on the basis of number of carbon atom it has and on the basis of functional group, which functional group is present, aldose, aldehyde group or ketonic group. Accordingly, we classify them. First, on the basis of number of carbon atom. Second, on the basis of functional group, right? If I say that monosaccharide has 3 carbon in it and this group is aldehyde group. So what will we name them? 3 का हो गया triose, aldehyde है तो aldo triose. If ketonic group is there and 3 carbon are there, we will call it as keto triose. Similarly, we can name for others as well. If it has 4 carbon, if a monosaccharide has 4 carbon, then we say tetra. 3 के लिए we say tri, 4 के लिए we say tetra, 5 के लिए we say penta, 6 के लिए हम बोलते हैं hexa, 7 के लिए हम बोलते हैं hepta, right? और अगर aldehyde ग्रुप है तो aldo लगाएंगे, ketonic ग्रुप है तो keto लगाएंगे. तो जैसे अब ये वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं हेक्सोस वाला. अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन रहेंगे तो जनरल टर्म होगी हेक्सोस. क्या बनेगा? अल्डो हेक्सोस. जैसे ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड के पास 6 कार्बन है तो हेक्सोस. शुगर है तो हेक्सोस और अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डो हेक्सोस. कीटोनिक ग्रुप है तो
ketohexose, right? Sometimes this is also asked in your MCQ question. This also we can understand same thing which we have done monosaccharide को on the basis of carbon. जैसे हमने यहाँ पर केवल 3 बोला नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन कौन से सैकराइड्स हैं जिनके पास 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 है, 6 है, 7 है, उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा एक्सप्लेन किया है. जैसे 3 कार्बन है तो उसमें एग्जांपल आ जाएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. टेट्रोज मतलब जिनके पास 4 कार्बन है वो हो जाएंगे एथरोज. 5 कार्बन है तो राइबुलोज. ये 5 कार्बन वाला भी कई बार एग्जाम में आता है. पेंटोज में राइबुलोज, एराबिनोज. हेक्सोज तो हम सभी जानते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब में 6 कार्बन होते हैं. हेप्टोसिस, देन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसको हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल दिया. कीटोसिस में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, जैसे फ्रक्टोस में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है ना. कीटो, ये वाला जो हमने नाम दिया कीटोहेक्सोज, ये हो गया कीटोहेक्सोज. ठीक है, तो हमने इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. हम आते हैं मोनोसैकेराइड सिंपल वाला. ग्लूकोज का हम एग्जांपल लेते हैं जो आपके सिलेबस में है. हम देखेंगे हाउ वी प्रिपेयर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस, है ना. प्रिपरेशन में सुक्रोज ये जो है ये लैब मेथड है ना, ये लेबोरेटरी मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है. आपको पेपर में किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है इसमें, आपको अब यहाँ पर इस तरह से लिखना तो नहीं है प्रिपेयर ग्लूकोज बाय लेबोरेटरी मेथड और फ्रॉम इंडस्ट्रियल मेथड. नो, नॉट लाइक दैट. अ सिंपल कंपाउंड विल बी गिवन टू यू, है ना. Like sucrose is given and you will be asked sucrose on hydrolysis. Sucrose with H2SO4 gives what? So you at that time you have to understand that sucrose on hydrolysis gives glucose and fructose. This is one of the methods of preparation of glucose, right? And fructose as well. So from sucrose, that is cane sugar, if you treat sucrose with either HCl or with H2SO4, medium shall be alcoholic. You get glucose and fructose in equal amount, okay, 1:1 same. Then when we say starch, commercial method, industrial method के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है जहाँ पे आप स्टार्च या सेल्यूलोज लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 393 केल्विन अंडर प्रेशर आप ट्रीट करते हैं तो यू गेट n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना. स्टार्च को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें स्टार्च से क्या मिलता है, बहुत सारे पॉलीसेकेराइड, है ना. स्टार्च किसके अंडर में आता है, पॉलीसेकेराइड्स में. इसका मतलब स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे और सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, राइट. तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज करके याद नहीं रखना है, ठीक है. आपको यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, सेकंड स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, अंडर व्हाट कंडीशन. Okay, sometime condition can be written in alcoholic medium, with acid, with sulfuric acid, under pressure, things like that may be asked. Then let us study the structure of glucose. ठीक है, आपके सामने ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. ठीक है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक पहली बात कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें 6 कार्बन है. अगर अल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन भी है तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया अल्डोहेक्सोज. इसका ग्लूकोज का दूसरा नाम है डेक्सट्रोज. तो पहली चीज ये अल्डोहेक्सोज हो गया और ये डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है. अब ये स्ट्रक्चर आप देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसके पास एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्लियर है. हमें 4 अल्कोहलिक ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना. ये एक अल्कोहलिक ग्रुप, 4 अल्कोहलिक ग्रुप और ये एक और एक, मतलब टोटल 5 अल्कोहलिक ग्रुप है. उसमें से 4 जो है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और ये वाला जो है ये एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसा हो गया, इसमें आपके पास में एक अल्डिहाइड ग्रुप है, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. अब ये जो मैंने आपसे बोला इसके पास अल्डिहाइड ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये आपको कोई रिएक्शंस की मदद से प्रूव करना पड़ेगा कि यस ग्लूकोज के अंदर ये सारी चीजें हैं, राइट. ये भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है साथ में पायरेनोज का. दोनों स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको और थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि ये जो OH ग्रुप है ये किस तरह से दिया हुआ है ना. फर्स्ट सेकेंड वाले इसमें OH यहाँ पे है,
थर्ड वाले इसमें यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों OH ग्रुप साथ में है, तो ये स्ट्रक्चर भी कई बार एग्जाम में लिखा रहता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर किसका है। क्लियर? लेट अस प्रोसीड। चलो अब हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि सही में ग्लूकोज के पास में ये अल्डिहाइड ग्रुप है, 4 अल्कोहलिक ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है क्या, है ना? So let us understand. We know that the molecular formula of glucose is C6H12O6. ये तो हमें सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा कि रिएक्शंस बताइए, आपके सामने ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेगा। हो सकता है ये स्ट्रक्चर की जगह यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहे ग्लूकोज प्लस HI गिव्स व्हाट, है ना? तो ग्लूकोज विथ HI गिव्स N-हेक्सेन, है ना? यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन और N मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो ग्लूकोज है ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक। तो आपको पेपर में कैसे रहेगा? ग्लूकोज विथ HI। ग्लूकोज विथ HI भी हो सकता है लिखा, या तो टर्म हो सकती है ग्लूकोज ऑन रिडक्शन, ठीक है, गिव्स, और यहाँ पर ऊपर आपको HI लिखा हो सकता है। तो ग्लूकोज with HI, that is reduction process, leads to formation of N-hexane, which indicates that glucose में कार्बन जो है they are all linked in straight chain. This sentence which is bold is actually one of your MCQ. Okay, this reaction of glucose with HI giving N-hexane tells you that carbon atom in glucose are in straight chain, right? Plus, do not forget this byproduct, that is 2-iodohexane, because sometimes in paper this is also asked. Sometimes in exam glucose with HI gives N-hexane plus what? This 2-iodohexane has also been asked number of times. So do not forget this byproduct as well. Okay. Now, if we reduce glucose with HI, you get N-hexane. However, when you reduce glucose with sodium amalgam, you get sorbitol. So, reduction of glucose can take place by 2 ways, either using HI or using sodium amalgam. Okay, you get sorbitol. What is sorbitol? The structure is not shown. Sorbitol में ये जो CH2 है यहाँ पे भी रहेगा CH2OH. तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगी? CH2OH, यहाँ रहेगा CH2OH, CHOH 4 times and CH2OH, right? Let's proceed. I hope you understood this. Next is if we treat glucose with hydroxylamine, okay, you get an oxime. इसको हम बोलते हैं ग्लूकोऑक्साइन, ठीक। हमने क्या बोला है? If you treat glucose with hydroxylamine, glucose with hydroxylamine forms glucooxime, right? Similarly, यही कार्बोहाइड्रेट में अगर हम HCN डालते हैं तो आपको साइनोहाइड्रिन मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है, तो ये साइनोहाइड्रिन का हम नाम क्या बोलेंगे? We will call it as glucose cyano. Am I clear? Glucose with hydroxylamine forms oxime. If it is glucose, it will form glucooxime. अगर दूसरा सैकराइड, दूसरा शुगर रहेगा, अकॉर्डिंगली उसका नाम चेंज होगा, ठीक है। कीटोऑक्साइम रहेगा, दूसरा कोई रहेगा। तो ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिलामीन विल फॉर्म ग्लूकोऑक्साइम. सिमिलरली ग्लूकोज विथ HCN forms cyanohydrin. Since it is glucose, it is glucose cyanohydrin. ये दोनों रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में? कि ग्लूकोज के पास में कार्बोनिल ग्रुप है। ये जो बोल्ड किया हुआ है, दिस इज MCQ, वन ऑफ द MCQ, ठीक है। इट मे बी आस्क्ड दैट ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिलामीन फॉर्म ग्लूकोजाजीम which indicate presence of, and number of options can be there. You have to select. It indicates presence of carbonyl group. I hope I am clear, right? Let us proceed to the next reaction. Glucose, हाँ, अब ये वाला है glucose on oxidation with bromine water, right? What is the question? Don't
read in the form ki we are learning the reaction of glucose. Okay, although we are learning things under the reaction, but let us study from examination point of view that you are given this molecule, you are given this saccharide, and you are being asked that this particular X compound on oxidation or on treatment with bromine water gives what? So oxidation, जब हम बोलते हैं glucose with bromine water, it means what? We are learning oxidation. Bromine क्या करता है? Oxidize कर रहा है. So glucose gets oxidized to gluconic acid. Gluconic acid, ये देखिए यहाँ पे CHO की जगह पे क्या लग गया है? COH. एसिड है. NiC, जब भी IC लगता है मतलब वो एसिडिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना. तो ये हो गया. एक दो बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो क्या था? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर. ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स, एंड ऑप्शंस कैन बी देयर. एट दैट टाइम यू हैव टू राइट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड. ये सेकेंड MCQ क्या हो सकता है? यही सेम स्लाइड में कि अगर ग्लूकोनिक एसिड बना है तो ये आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ग्लूकोज जो है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन अल्डिहाइडिक ग्रुप. ठीक है, लेट अस प्रोसीड. नेक्स्ट जो है अभी इसी पे ये वाला जो रिएक्शन था ब्रोमीन वाटर के साथ में ग्लूकोनिक बना, इससे हमें क्या पता चल रहा था कि ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइड ग्रुप है. ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बनना मतलब क्या बताता है ग्लूकोज के बारे में? उसके पास में एक अल्डिहाइड ग्रुप है. और भी बहुत सारी रिएक्शन है जो बताते हैं कि ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइड ग्रुप है. जैसे अगर हमने ग्लूकोज को टोलेंस रिएजेंट से ट्रीट किए, फेलिंग सोल्यूशन से ट्रीट किए, बेनेडिक्ट सोल्यूशन से ट्रीट किए, ठीक है, तो ग्लूकोज ये सारी टेस्ट देता है. जो भी सैकराइड टोलेंस टेस्ट देगा, फेलिंग सोल्यूशन की टेस्ट देगा, बेनेडिक्ट की टेस्ट देगा, वो होते हैं, इसका मतलब होता है उसके पास एक तो अल्डिहाइड ग्रुप है और ये रिड्यूसिंग शुगर्स है. ठीक है, तो ग्लूकोज टोलेंस रिएजेंट के साथ में ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है. ठीक है, हम यहाँ पर भी जो है ऑक्सीडेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन टोलेंस रिएजेंट के साथ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन फेलिंग सोल्यूशन के साथ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ. जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं ये रिएजेंट से तो आपको सिल्वर मिरर टेस्ट मिलती है. ठीक है, ये रिएक्शन जो है this test you had already performed in your college, I suppose everybody does have done, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब में आपको साइड में पूरा सिल्वर मिरर जो है वो दिखता है. I hope कि you all had done this test. ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो टोलेंस टेस्ट देता है. ग्लूकोज को अगर हमने फेलिंग सोल्यूशन से ट्रीट किया तो आपको रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है. ग्लूकोज को हमने बेनेडिक्ट सोल्यूशन से ट्रीट किया तभी भी आपको क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर का PPT मिलता है. और हर एक में आप साथ साथ में देखो आपको ग्लूकोनिक एसिड भी मिल रहा है. तो ये जो प्लस लिखा है ना, ये भी कई बार X हो सकता है आपके MCQ में. ये तीनों बताते हैं कि ग्लूकोज जो है उसके पास में अल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट थिंग. दूसरा ये बताते हैं कि ग्लूकोज जो है एक रिड्यूसिंग शुगर है. जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा वो ये तीनों टेस्ट देगा, टोलेंस की, फेलिंग सोल्यूशन की और बेनेडिक्ट की. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. देन नेक्स्ट, अगर ग्लूकोज का हमने एसिलेशन किया, ठीक है, ग्लूकोज को हम एसिलेशन कर रहे हैं मतलब हम एसिडिक एनहाइड्राइड्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट. मतलब जब अब आप ये आपको दिया हुआ है सैकराइड ग्लूकोज विद एसिडिक एनहाइड्राइड और आपको मिलता है, आपको यहाँ पे बताना है व्हाट इज द कंपाउंड यू आर गेटिंग ओवर हियर. क्योंकि ग्लूकोज के पास में 5 OH ग्रुप है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. ठीक है, ग्लूकोज के पास में 5 एल्कोहलिक ग्रुप है, 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी. तो 5 OH ग्रुप है. ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर ग्लूकोज को हमने ट्रीट किया
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में एसिलेशन किया ग्लूकोज को तो यू गेट पेंटा। पेंटा मतलब 5, है ना। तो 5 जगह पे ये एसिल ग्रुप जो है ये अटैच हो गया, CO C डबल बॉन्ड O CH3 एसिल ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 चीज क्या सीखे, ग्लूकोज ऑन एसिलेशन गिव पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट दैट इज 5, जो प्रूव करता है कि ग्लूकोज के पास में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपके 2 MCQ बनते हैं यहाँ पे, एक कि ये बताता है कि 5 OH ग्रुप है, दूसरा आप कंपाउंड मिलता है पेंटा एसिटेट। और कभी कभी एसिटिक एनहाइड्राइड जो है दिस ऑल्सो कैन बी MCQ, ग्लूकोज विथ X, ग्लूकोज विथ X गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इफ वी ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विथ नाइट्रिक एसिड, अब ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन कैसे किया था, यहाँ पे टोलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, और ऑक्सीडेशन किया था ब्रोमीन वाटर से। अब नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, अगर हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया नाइट्रिक एसिड के साथ में, ये ग्लूकोज है, नाइट्रिक एसिड के साथ में इसको हमने ऑक्सीडाइज किया HNO3 के साथ में, तो आपको मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक ये जो है ये क्या बन रहा है एक्चुअली में, देखो आपको 2 COOH ग्रुप मिल रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम है सैकरिक एसिड। ठीक है, अगर हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया नाइट्रिक एसिड के साथ में, और ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर हमने ऑक्सीडाइज किया नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो ग्लूकोनिक एसिड भी और ग्लूकोज भी दोनों आपको क्या कंपाउंड देते हैं, दोनों मिलता है हमको सैकरिक एसिड। ठीक है, सैकरिक एसिड मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स यहाँ पर COH ग्रुप लग गया, यहाँ पर COH ग्रुप लग गया। ग्लूकोनिक के पास में तो ऑलरेडी एक COH ग्रुप था ही से, यहाँ पर भी ये कन्वर्ट हो गया COH में। 2 COH ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक और सैकरिक एसिड। ठीक है, क्या याद रखना है यहाँ पे, चाहे ग्लूकोज हो चाहे ग्लूकोनिक एसिड हो, दोनों का अगर ऑक्सीडेशन किया नाइट्रिक एसिड के साथ में HNO3 के साथ में, तो आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जो सैकरिक एसिड भी हम बोलते हैं। आपको आपके MCQ में ये जो वर्ड है डाई कार्बोक्सिलिक, ये टर्म देखने मिलेगा। ठीक है, या तो सैकरिक एसिड भी हो सकता है। ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है कि ग्लूकोज के पास में एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, एम आई क्लियर, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ये प्रूव होता है जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में। I hope I am very clear to you. Shall we proceed? Now, next last reaction of glucose, glucose with phenylhydrazine. अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है अलग अलग तरीके से। ठीक, When you treat glucose with phenylhydrazine, you get glucosazone. जो भी आप मॉलिक्यूल लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, उसके हिसाब से आपको ओसाजोन मिलता है। ठीक है, अगर हमने ग्लूकोज लिया तो हमें ग्लूकोसाजोन मिलता है, अगर हमने दूसरा कंपाउंड लिया, फ्रक्टोज लिया, मैनोज लिया, तो उसका ओसाजोन मिलेगा हमें। पेपर में MCQ में पॉसिबल क्वेश्चन कैन बी, हाउ मेनी phenylhydrazine are used to convert glucose into glucosazone? So your answer should be, you require 3 molecules of phenylhydrazine so that this glucose can be converted into glucosazone, right? I hope I am very clear with this, because this is one of the very important question in CET, right? Now other compounds. Now I have asked one question. Glucose, fructose and mannose, they form same oxazone when treated with phenylhydrazine. अब ये इसमें आपके 2 आंसर बनते हैं, मतलब आपको समझ में आ गया कि ग्लूकोज भी ओसाजोन बनाता है, फ्रुक्टोज जो है वो भी ओसाजोन बनाता है, मैनोज जो है वो भी ओसाजोन बनाता है। ठीक है, these 3 units, these 3 sugars, they form ओसाजोन when they are treated with phenylhydrazine. Why? ये कभी कभी ये वाला जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, that can also be one of the question. Why they form? रीजन हमने बोल दिया ग्लूकोज से ओसाजोन बनता है, फेनिलहाइड्राजीन के साथ क्यों बनता है ओसाजोन? बिकॉज दे डिफर
in first and second carbon atom which are transformed to the same. ये आपको की वर्ड है because they differ only in first and second. ये तीनों जो है ये रिएक्शन देते हैं क्योंकि तीनों में क्या अंतर है, केवल फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम में इनमें अंतर है. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है. अब यहाँ पे हमारे पूरे रिएक्शंस जो थी ग्लूकोज की खत्म होगी, जो हमें बताती है, ठीक है, कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन करती है कि ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइड है, वो रिड्यूसिंग शुगर है, उसके पास में अल्कोहलिक ग्रुप है, उसके पास में 4 अल्कोहल प्राइमरी है, 1 प्राइमरी है, 4 सेकेंडरी है. ये सब हमने अलग अलग रिएक्शन के थ्रू पूरा स्टडी कर लिया. नाउ मूव अहेड. अब ग्लूकोज जो है उसके पास में 4 कायरल एटम है ना. अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है. चलो हम बैक वाली स्लाइड में थोड़ा चलते हैं. ग्लूकोज का देखो कितने कायरल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 है ना. कायरल कार्बन हम किसको बोलेंगे, जिसमें चारों कार्बन के 4 हाथ में अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, तो हो गया कायरल. तो कितने कायरल कार्बन है इसके पास में, ग्लूकोज के पास में 1 2 3 4 अगर उसके पास में कायरल कार्बन है ग्लूकोज के पास में, तो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 2⁴. मतलब 16 stereoisomers are possible for glucose. Sometimes in your MCQ this is also asked. So we know glucose contains 4 chiral carbon, hence 2⁴ means 16 stereoisomeric forms are possible for glucose, right? Now second thing, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो हमें कितने, एक ग्लूकोज से हमें 38 ATP, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी का यूनिट है. ठीक है, आपको एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलते हैं, 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं. तो कभी कभी in your MCQ I have noted one of the question was like this: if 2 moles of glucose are oxidized in the body through respiration, the number of moles of ATP produced are, and options were there, 38, 76, 102, 82, like that. So your correct option should be 76, because you understand that from one glucose you get 38 ATP. If there are 2, then you should get 76 ATP, right? Let's proceed. Let us see other factors of the glucose, है ना. यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 कायरल, एक अल्डिहाइड. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, कभी कभी पेपर में ये स्ट्रक्चर भी बनी होती है एंड यू आर आस्क्ड ये किसका स्ट्रक्चर है. ठीक, तो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं हमेशा, डी पॉजिटिव ग्लूकोज. ठीक, दूसरा ये जो लिखा हुआ है डी बिफोर द नेम ग्लूकोज, हम डी क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, this is also one of the MCQ. D before the name of the glucose represent configuration at particular chiral carbon. So you will relate D with configuration. D represent configuration. और प्लस मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मतलब उसका whether it is dextrorotatory or levorotatory. यहाँ पे हमने क्योंकि प्लस साइन लगाई है, इसका मतलब होता है D कॉन्फ़िगरेशन है और प्लस मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. लेट अस अंडरस्टैंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के बारे में हमने जो भी चीजें पढ़ी है, फिर भी उसमें कुछ कमी खामी है जो हमें थोड़ा डाउट में ले आती है. ठीक है, जैसे ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइड ग्रुप है, ये हम सब जानते हैं, बट स्टिल ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट. इट शुड गिव. ग्लूकोज को शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए अगर उसके पास में अल्डिहाइड है, क्योंकि आपने अल्डिहाइड्स वाला जो यूनिट है जुमले मैम ने आपका कवर कराया, मुझे लगता इसमें आपको उन्होंने पढ़ाया था कि अल्डिहाइड्स जो है, अल्डिहाइड ग्रुप अगर रहता है तो शिफ्ट टेस्ट देता है वो, राइट. तो अगर यहाँ पे हमने बोला ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसने शिफ्ट टेस्ट देनी चाहिए, बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट. दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द MCQ. सेकेंड, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता, इट शुड रिएक्ट. थर्ड वाला, pentacetate of glucose does not react with hydroxyl amine or else it should. Then ये सब ये जो रिएक्शन है तीनों, इससे हमें क्या समझ में आता है कि CHO ग्रुप एब्सेंट है. ठीक है, बट हम जानते हैं कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये सबसे
दूसरी बात हमें क्या समझ में आती है कि these reaction indicate the absence of free switch और indicate ring structure, मतलब ग्लूकोज का जो है रिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, ये तीन जो रिएक्शन है ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकती है। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, और ये जो है कंपाउंड ये लिखा हो सकता है सोडियम बाइसल्फाइड, आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपर कंपाउंड कि ग्लूकोज जो है किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद दिस, इट डज नॉट रिएक्ट विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ टर्म्स जो है एनोमर्स, इस पे क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है, राइट। एनोमर्स मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ओनली वर्ड आई एम सेइंग ओनली अराउंड C1। अब आप देखिए ये आपके पास में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है अल्फा डी और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा और बीटा में आपको दिख रहा है दोनों में क्या अंतर आ रहा है, ये आपका मेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये वाला जो है आपका सिंपल जनरल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर OH ग्रुप इधर साइड में है राइट साइड में, इधर OH ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में, ये स्ट्रक्चर कैसे बना, 1 और 5 के बीच में अल्कोहलिक ग्रुप का शिफ्टिंग, ताकि रिंग स्ट्रक्चर बन सके, है ना। यहाँ पे हमने बोला ना कि ये टेस्ट नहीं दे रहा है ग्लूकोज, इसका मतलब है रिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है ग्लूकोज के लिए। तो ये देखिए ऐसे रिंग बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। ठीक, अगर OH ग्रुप देखो आपको राइट साइड में दिख रहा है, OH ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर दिख रही है आपको, ये दोनों स्ट्रक्चर में हमको दिख रहा है कि ये दोनों जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, इनमें कॉन्फ़िगरेशन में C1 कार्बन में अंतर है। OH राइट साइड, OH लेफ्ट साइड। तो अगर केवल आई एम सेइंग C1, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेल, कार्बोहाइड्रेट्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड C1, केवल C1 में अंतर है तो हम उसको बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज, ये MCQ क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। The term enomer of glucose means isomers of glucose that differ in configuration at C1। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर C1 में उसका चेंजेस है तो आप उसको एनोमर्स बोलोगे। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे कोट किया है ग्लूकोज का, है ना। ग्लूकोज में आपको दिख रहा है C1 पोजीशन में डिफरेंस है, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1, बाकी सब वैसा की वैसा ही है। क्लियर। दूसरा जो है यही सेम एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर्स। इनमें एनोमर्स आपको सिलेक्ट करना है। एनोमर सिलेक्ट करना है मतलब C1 पोजीशन में कहाँ चेंजेस है ये आपको बताना है। आपको कहाँ दिख रहा है चेंजेस, करेक्ट आंसर आपको कौन सा दिख रहा है, मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 में केवल C1 में अंतर है, ये तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है ना। ये वाला कंपाउंड तो है ही नहीं, मतलब आपका आंसर ये दोनों में ही आता है। आपका करेक्ट आंसर है 1 और 2। ठीक, ये JEE में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, एनोमर्स मतलब डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1 ओनली। नेक्स्ट टर्म, अभी हमने एक टर्म पढ़ी एनोमर, अब हम दूसरी टर्म पढ़ रहे हैं एपीमर। एनोमर में हमने क्या पढ़ा कि C1 में अंतर है। एपीमर में हम क्या पढ़ेंगे, C1 को छोड़कर बाकी जितने भी कायरल कार्बन हैं, ठीक है, फर्स्ट एनोमरिक कार्बन को छोड़ के बाकी जितने कार्बन है अगर वहां अंतर होता है तो हम उसको टर्म देते हैं एपीमर। तो हमने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट 1 कार्बन अदर देन एनोमरिक। एनोमरिक कार्बन हमने किसको बोला, कार्बन 1 को। तो 1 कार्बन को छोड़कर बाकी अगर आपको दोनों बाकी के इसमें चेंजेस दिखते हैं, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों पूरे सेम है। कहाँ अंतर है इनका, सिर्फ कार्बन 4 में आपको अंतर दिखेगा। ग्लूकोज और मैनोज दोनों बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनमें कहाँ अंतर आ रहा है, केवल C2 में। ठीक है, तो हम इस तरीके से एपीमर्स एनोमर्स पे क्वेश्चन आते हैं तो अटेंड करेंगे। ठीक है, दूसरा एक टर्म आता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन मतलब चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन सिर्फ एक बात गार्ड बांध के रखिए, म्यूटा हर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो है
जितने भी रिड्यूसिंग शुगर रहेगी वो सारे mutar rotation, they all will undergo mutar rotation. Did you note down what did I said? What you need to note? All reducing sugar will show mutar rotation. अब reducing sugar में कौन सी लिस्ट आती है, उसके लिए आपको पूरा पहले वाली स्लाइड रिकलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको बोला था मोनोसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड दोनों काय में आते हैं, रिड्यूसिंग में, और एक एक्सेप्शन हमने लिया था वो था सुक्रोज। मतलब आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज जितने भी हैं सब म्यूटर रोटेशन शो करेंगे, दे ऑल विल अंडरगो म्यूटर रोटेशन, केवल किसको छोड़ के, सुक्रोज को। इसमें अगर मैंने आपको पूछा स्टार्च, चलिए अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बताइए स्टार्च जो है विल इट अंडरगो म्यूटर रोटेशन, स्टार्च म्यूटर रोटेशन बताएगा, डेक्स्ट्रिन, इंसुलिन, नो, क्योंकि वो रिड्यूसिंग है ही नहीं। जो आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्टार्च काय में आता है, स्टार्च आता है पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, राइट। और मैंने क्या बोला, म्यूटर रोटेशन कौन शो करेगा, ओनली रिड्यूसिंग। इसका मतलब है पॉलीसेकेराइड के अंडर में जितने एग्जाम्पल आएंगे दे विल नॉट शो म्यूटर रोटेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि दिस विल हेल्प यू इन आंसरिंग एमसीक्यू। देन साइक्लिक स्ट्रक्चर, बस इसमें आप एक ही चीज याद रखिए कि ये जो है पायरानो स्ट्रक्चर है, कभी कभी जो है पायरन से इवॉल्व हुआ इसलिए ग्लूकोपायरानोस और ग्लूकोपायरानोस अल्फा और बीटा, बस ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मोटा मोटा ध्यान में रखिए, ठीक है। इससे ये आपको हेल्प करेगा कि बेसिस वगैरह कौन सी होती है, शुगर कौन सी होती है, उसमें 5 मेंबर है कि 6 मेंबर है, बस ठीक। अब हम आते हैं कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे इन एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज तीनों फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, वो भी इक्विलिब्रियम में। कौन सा, ओपन चेन फॉर्म भी ग्लूकोज की, पायरानोस फॉर्म भी, फ्यूरानोस फॉर्म भी। ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने मार्क किया, दिस इज एमसीक्यू व्हिच हैज बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स इन सीईटी एज वेल एज इन जेईई, ठीक है। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, जो डायबिटिक पेशेंट होता है, दे ऑलवेज कैरी अ पैकेट ऑफ ग्लूकोज विथ हिम। व्हाई दे नीड टू कैरी ग्लूकोज या चॉकलेट रखते हैं वो, है ना, जैसे भी उनको लगता है तो वो चॉकलेट निकाल के खाते हैं। क्यों, क्योंकि चॉकलेट भी आपको शुगर दे रही है। ग्लूकोज विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इंस्टेंटेनियसली, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन डायबिटीज को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, डायबिटिक डिटेक्ट करना है तो यू यूज बेनेडिक्ट सोल्यूशन। शुगर्स डिटेक्ट करनी है और तो उसका दूसरा और एक है मॉलिश टेस्ट, तो मॉलिश टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट चॉकलेट क्यों रखते हैं अपनी पॉकेट में, बिकॉज इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इंस्टेंटेनियसली। डायबिटीज जो उसको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए शुगर है, डायबिटीज में शुगर कैसे टेस्ट करेंगे, शुगर को बेनेडिक्ट से भी कर सकते हैं, मॉलिश टेस्ट भी उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अब इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं डायरेक्टली आंसर करती हूँ बिकॉज वी आर रनिंग लेट। पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद डायको। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि कौन सा जो है विच कैन नॉट एक्सप्लेन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। टोलेंट टेस्ट कौन देगा, जो रिड्यूसिंग शुगर है, क्लियर। आपको यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करने में सेकंड्स लगना चाहिए केवल, क्योंकि डायरेक्ट दिया है। टोलेंट टेस्ट कौन देता है, वो हर सेकेराइड देगा जो रिड्यूसिंग है। तो ग्लूकोज सही है, सुक्रोज गलत हो गया, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। हेक्सेनॉल एसिटोफिनोन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एक बार आ जाएगा सही, तो सुक्रोज जो है ये जहां आपको सुक्रोज दिखा नॉन रिड्यूसिंग है, आपका आंसर वहीं कैंसिल हो जाता है, आप डायरेक्टली सेकंड पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रुक्टोज जो है, फ्रक्टोज इज इंपॉर्टेंट, कीटोनिक ग्रुप है उसमें और 6 कार्बन है, इसलिए उसका नाम हो गया कीटोहेक्सोज। कैसे बनाते हैं हम, सुक्रोज से। सुक्रोज से हाइड्रोलिसिस करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपको इक्विमोलिक्यूलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा, है ना। ये तो हमने ग्लूकोज में भी पढ़ लिया था।
फ्रुक्टोज जो है, हाँ, ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है लिवोरोटेटरी, ये टर्म फ्रक्टोज जब हम पढ़ते हैं तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज जो है डी सीरीज में है और सेकेंडरी लिवोरोटेटरी है। तो सबसे मैक्सिमम लिवोरोटेशन, अगर आपको एग्जांपल दिया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, और पूछा जाता है कि सबसे मैक्सिमम लिवोरोटेशन कौन शो करेगा, तो आप इमीडिएटली इसको कोरिलेट करेंगे फ्रक्टोज के साथ में। इसीलिए जो बोल्ड, जो भी चीजें बेटा बोल्ड में लिखी हुई है उसको समझ के चलना कि मैम ने पर्पसली उसको बोल्ड किया है, सो दैट आई कैन अट्रैक्ट योर फोकस, आई कैन टेक यू टू दैट पॉइंट। ठीक है, ये लिवोरोटेटरी को फ्रक्टोज के साथ में बिल्कुल एसोसिएट करके रखेंगे। ठीक, और ये जो है ये 5 मेंबर्ड रिंग आपको दिख रही है, इसको ध्यान में रखेंगे। ग्लूकोज 6 मेंबर थी, ये 5 मेंबर्ड है। ठीक, अब दूसरा आता है पेपर में आपका क्वेश्चन, सुक्रोज। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये हमने ग्लूकोज के मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ा था, प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। और कौन सा एंजाइम है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आपको एग्जाम में हो सकता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स दिस, और ये एंजाइम कौन सी एंजाइम है विच इज ब्रिंगिंग, हम जो भी चीज खाते हैं बेटा, वॉट एवर वी ईट, उसको सबको कन्वर्ट करने वाला, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाला, दैट इज एंजाइम ओनली। और हर एंजाइम अलग अलग है, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। सुक्रोज को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपना स्पेशल एंजाइम रहेगा, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करना है तो उसका अपना अलग एंजाइम रहेगा। तो you have to remember names of enzymes also which do the conversion. यहाँ पर कौन है एंजाइम? इन्वर्टेज। देन डाइसैकेराइड सुक्रोज को हम अगर और फर्दर स्टडी करते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें पता है कि सुक्रोज कैसे बना है। सुक्रोज बना है एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, है ना, डाइसैकेराइड है ना सुक्रोज, मतलब अगर हमने इसको हाइड्रोलाइज किया तो हमें क्या मिलेंगे? 2 यूनिट, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। अब ये आपका एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा एमसीक्यू रहेगा कि ये वाला ग्लूकोज और ये वाला फ्रक्टोज दोनों कैसे लिंक्ड है, कौन सी लिंकेज है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये दूसरा एमसीक्यू आंसर हो गया आपका। तीसरा C1, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन 1 है, C1 ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? 2 कार्बन, तो C2 ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, और ये भी दिख रहा है C1 अल्फा, C2 बीटा। ये आपका एमसीक्यू है, आपको पेपर में रहेगा कि लिंकेज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में कौन सी लिंकेज है। ये तो हमें पता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बट किस कौन से कार्बन के बीच में? तो C1 ग्लूकोज का, C2 फ्रक्टोज का। C1 में भी अल्फा है और C2 फ्रक्टोज में बीटा है, तो it will be C1 alpha of glucose and C2 beta of fructose. This is the MCQ. Second, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो देर इज चेंज इन रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो, लिवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रो टू लिवो, इसलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। तो समटाइम जो है यहाँ पे मैंने लिखा है इन्वर्ट शुगर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एमसीक्यू। तो सुक्रोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, एक तो हाइड्रोलाइज करने के बाद में सुक्रोज से क्या मिलता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है किसके किसके बीच में? C1 अल्फा ऑफ ग्लूकोज, C2 बीटा ऑफ फ्रक्टोज। थर्ड, क्योंकि ये रोटेट होता है डेक्स्ट्रो टू लिवो, इसलिए इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट, सुक्रोज मैंने आपको पहले ही बताया नॉन रिड्यूसिंग है, इसलिए ये आपको टोलरेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट और साथ में ग्लूकोसाजोन, ये कोई भी टेस्ट नहीं देगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। दूसरा, सुक्रोज के साथ में अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ट्रीट किया तो हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। सुक्रोज में अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया H2SO4 तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और काला काला जैसे चारिंग, समझते हैं ना, चारिंग ऑफ शुगर, शुगर को अगर हम जलाए तो
पूरा काला काला आपको जो मटेरियल, चारिंग वर्ड हम यूज करते हैं। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये भी होता है कि सुक्रोज प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आंसर एमसीक्यू आंसर हो सकता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक एमसीक्यू हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है लीड्स टू चारिंग ऑफ शुगर। तो ये दोनों भी जो है ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुक्रोज एक जो है भले ही डाइसैकेराइड में आता है और बट स्टिल वो नॉन रिड्यूसिंग है, इसीलिए म्यूटा रोटेशन नहीं शो करेगा। ये चीज ऑलरेडी मैंने स्ट्रेस कर चुकी हूँ पहले वाली स्लाइड में, मैं फिर से रिट्रेट कर रही हूँ। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, therefore it will not exhibit muta rotation because it is non reducing. नेक्स्ट माल्टोज, इससे क्या क्वेश्चन आएगा, अगर माल्टोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए माल्टोज को हमने हाइड्रोलाइज किया तो हमको 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ठीक है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया तो हमें क्या मिल रहा था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हमने माल्टोज को हाइड्रोलाइज किया तो हमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, तो 2 ही मिलेंगे, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। दोनों कैसे हैं नेचर में, अल्फा है। दोनों कहाँ से जुड़े हैं, देखिए दिख रहा है आपको, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 है, मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में है, बिटवीन C1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अदर, एंड बोथ द ग्लूकोज आर अल्फा। तो आपकी लिंकेज आंसर क्या बना, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपके एग्जाम में रहेगा। पहला, माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव 2 ग्लूकोज, ये आपका एक एमसीक्यू हो सकता है, जहां आपको लिखा रहेगा माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज, ऐसे ऑप्शन होंगे। आपका आंसर होना चाहिए 2 ग्लूकोज। दूसरा एमसीक्यू हो सकता है कि दोनों में कहाँ लिंकेज है, तो दोनों में कहाँ लिंकेज है, कार्बन 1 एक ग्लूकोज और कार्बन 4 दूसरा, तो लिंकेज क्या हो गई, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन एंजाइम है जो ये माल्टोज को 2 ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, कौन सी एंजाइम है, हमेशा एंजाइम जो होती है वो मैक्सिमम टाइम एज में एंड होती है ना, तो माल्टोज का रहेगा माल्टेज। माल्टेज एंजाइम इन दोनों को, माल्टोज को 2 ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करेगी, कन्वर्ट करेगी, ठीक है। और माल्टोज का में है रिड्यूसिंग, मतलब ये जब हमने बोला रिड्यूसिंग है माल्टोज, तो ये टोलेंट टेस्ट, फेलिंगसेश, बेनेडिक्ट टेस्ट, ओसाजोन फॉर्मेशन, ये सब टेस्ट देगा, ठीक है। लैक्टोज बोलेंगे तो लैक्टोज का दूसरा नाम क्या है, मिल्क शुगर, सभी जानते हैं ये बात तो, ठीक है। लैक्टोज को अगर हमने हाइड्रोलाइज किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि वो लैक्टोज डाइसैकेराइड है तो दो ही चीज केवल मिलेगी, उसमें एक है ग्लूकोज, दूसरा है गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है, अब आपको यहाँ कंफ्यूजन रहता है, आपको कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल देखिए गैलेक्टोज का है, दूसरा ग्लूकोज का है, मतलब गैलेक्टोज का C1 है और ग्लूकोज का C4 है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डेफिनेटली यू विल बी आस्क्ड C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ गैलेक्टोज। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, आपके लिए जो ट्रैप बिछा रहेगा उसे मत आइए, याद रखिएगा C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। C1 और दोनों बीटा है, आपको एग्जाम में अल्फा भी लिखा होगा, तो यहाँ कौन सी लिंकेज बनी, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बीटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्फा भी मिलेगा आपको एमसीक्यू में। दूसरा ये भी हो सकता है लिखा हुआ C1 बीटा ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ दिस थिंग गैलेक्टोज, तो बिल्कुल ध्यान रखना C1 गैलेक्टोज है, C4 ग्लूकोज है। बस यहाँ पे यही चीज पे मेरे को अपना फोकस ले जाना था आप लोगों का, बस उतनी चीज ध्यान रखिए। लैक्टोज जो है ये भी रिड्यूसिंग है, मुझे घड़ी घड़ी बताने की जरूरत नहीं है कि ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, आपको अभी तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा कि रिड्यूसिंग काय में आते, नॉन रिड्यूसिंग काय में आते, ठीक है। देन एग्जाम में कभी कभी होता है रेफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फॉर्म। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है, ट्राई मतलब हाइड्रोलाइज करने के बाद में आपको 3 चीजें मिलनी चाहिए, 3 सैकेराइड यूनिट मिलना चाहिए, तो यहाँ मिलेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज।
स्टैचुलोज जो है वो टेट्रासैकेराइड है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। क्लियर? अगर हम स्टार्च पे आते हैं तो स्टार्च हमें काय में मिलता है? स्टार्च होता है प्लांट्स में। स्टार्च 2 चीज से बना है। इस पे एक क्वेश्चन बनता है, आप अगर अच्छे से सुनेंगे मैंने क्या बोला तो आपको इसमें कितने तरह के क्वेश्चन भी आए तो यू कैन सॉल्व इट विथ ईज। पहला, स्टार्च जो है वो प्लांट्स में होता है। दूसरा, स्टार्च में 2 कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब हम अमाइलोज की बात करेंगे, अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन जो है ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अमाइलोज जो है ये स्टार्च के अंदर 15 से 20% में रहेगा, प्लेन है। आपको दिख रहा है ये, इसमें आपको ब्रांचेस दिख रही है? कोई ब्रांचेस नहीं दिख रही। ये जो स्टार्च है हाइड्रोलाइज करते हैं हमें, तो हमें क्या मिलना चाहिए? बहुत सारे n नंबर ऑफ यूनिट। ठीक, स्टार्च कैसे बना है? ग्लूकोज से। n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। फिर मैंने बोला इसके अंदर मेन जो 2 कंपोनेंट है वो अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है। जब हम बोलेंगे अमाइलोज मतलब ये पानी में घुलने वाले हैं चीजें, और स्टार्च में ये कितने % में है? 15 से 20। ये एक MCQ है। दूसरा, प्लेन है, कोई ब्रांचेस नहीं है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज काय में दिख रही है आपको? देखो, एक C1 और C4, तो सब अल्फा है, पूरे अल्फा कार्बन है। आपको जब स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको अल्फा ही मिल रहा है, कंपाउंड अल्फा ही यूनिट्स मिलती है। तो यहाँ पे आपको यू कैन सी C1 एंड C4, C1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अदर, राइट, लिंकेज। अब स्टार्च जो है आयोडीन टेस्ट देता है। आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में भी ये वाली टेस्ट करी होगी, जब यू आर टोल्ड टू ब्रिंग राइस, प्रोटीन, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग लेके जाते थे, और मैम जो है चावल में, दाल में, घी में, दे यूज टू पुट सम सॉल्यूशंस एंड यू गेट सम रिजल्ट एंड यू कंक्लूड कि यस। जैसे अब स्टार्च चावल में सबसे ज़्यादा होता है ना, चावल वगैरह, राइस, इट कंटेन लॉट ऑफ स्टार्च इन इट। अगर हमने राइस लिया और राइस में हमने आयोडीन डाला, ठीक है, राइस में हमने आयोडीन डाला तो आपको ब्लैक कलर, वो ब्लूइश कलर, डार्क ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर फूड है, ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब क्यों बन रहा है वो काला कलर जो है, जो भी आपको कलर मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूसिव कॉम्प्लेक्स। ये जो मैंने बोल्ड में लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो हमने क्या चीज यहाँ पे समझी? स्टार्च जो है उसमें 2 कंपोनेंट है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज 15 to 20% रहेगा, प्लेन है, स्ट्रेट है, पानी में घुलने वाला है। C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और पूरी टेस्ट आयोडीन की तो देगा ही देगा। आलू में डालोगे तो भी मिलेगी, चावल में डालेंगे तो भी ये टेस्ट आपको मिल सकती है। आप लोगों ने ये स्कूल टाइम में करी है टेस्ट, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको रिकॉल कराया। ये हो गया अमाइलोज। अब सेम अमाइलोपेक्टिन देखते हैं। अमाइलोपेक्टिन जो है ये पानी में नहीं घुलेगा, ये 80 to 85% रहेगा स्टार्च में। आपको दिख रहा है ये ब्रांच है, ये देखो यहाँ प्लेन है और यहाँ देखिए ये ब्रांचेज हैं। अब ये जो है इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और ब्रांचेस के साथ में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। बस यही आपको छोटी छोटी बातें जो है याद रखनी है, ठीक है। ये 80 to 85% और दो बॉन्ड रहेंगी, एक C1 C4 में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और क्योंकि ब्रांचेज है तो ब्रांचेज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा करना, ठीक। और अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है ना, ये ग्लाइकोजन के साथ पूरा मिलता है। सेल्यूलोज अगर हम देखते हैं दूसरा वाला पॉलीसेकेराइड, तो ये बात जो मैंने बोल्ड करी हुई है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ये कीवर्ड है, आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सेल्यूलोज अकर्स इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। हमारी ह्यूमन बॉडी में हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इन आवर बॉडी वी डोंट हैव एनी एंजाइम टू कन्वर्ट दिस सेल्यूलोज, ठीक है। ये केवल सेल वॉल ऑफ प्लांट में होता है। इट इज अ स्ट्रेट चेन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। देखिए स्टार्च में आपको कहाँ दिख रही है? अल्फा, अल्फा दिख रहा है, अल्फा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज,
यहाँ पे बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो है मैं स्ट्रेस कर रही हूँ बिकॉज दिस इज अ पॉइंट आई वांट दैट यू शुड रिमेंबर एंड रिकलेक्ट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम एज वेल। देन ग्लाइकोजन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लाइकोजन का और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है, बस एक ही अंतर है दोनों में कि अमाइलोपेक्टिन जो है ये ज़्यादा, ग्लाइकोजन जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रांच है कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। तो ये जो लिखा है बोल्ड में, दिस इज वन ऑफ योर एमसीक्यू आंसर विच मे बी आस्क्ड। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है जब हम उपवास रखते हैं या बहुत देर भूखे रहते हैं, कुछ भी फास्टिंग है, तो एट दैट टाइम ग्लाइकोजन गेट्स कन्वर्टेड टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है ग्लाइकोजन? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एमसीक्यू। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में जब हम ज़्यादा एक्सेस में स्टार्च वगैरह लेते हैं या कुछ खाना खाते हैं, दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ जमा होता है ये सब? हमारी लिवर में, हमारे मसल्स में, हमारे ब्रेन में। जब हम फास्टिंग रहते हैं, हम बहुत देर खाना नहीं खाए, तो ग्लाइकोजन जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देता है। बिकॉज इमीडिएटली अगर हमने फास्टिंग रखा है तो हम वीक नहीं होता, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो यूज होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन आया था, ये जेडबलई वगैरह के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लिवर? ग्लाइकोजन जो है ये हमारे लिवर में स्टोर रहता है। ठीक है, फिर जब हम फास्टिंग करते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिलना चाहिए? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। तो 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज। अब ये देखो यहाँ पर आपका जो है, आपको सिलेक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुक्रो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कौन देगा? माल्टोस। गैलेक्टोज से मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज 2 मॉलिक्यूल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अगर आप बहुत क्लियर है तो वेलेन को डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी जो ऑप्शन है उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये तो आप कम से कम फिर आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन्स आप सभी जानते हैं, दाल वगैरह जो होती है, फिश, मीट, मिल्क, सब में भरपूर मात्रा में होता है। ये यूनिट लेने का रीजन ही यही था, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन जो है, you have to take in proper amount, you have to take a balanced diet so that you can boost your immunity in this time of COVID-19 जहाँ पे pandemic है। You need to boost your immunity, and unless and until you eat, you take a proper balanced diet along with exercises, this won't help you. Okay, so when I am saying protein, तो आपको ये सब अपनी डाइट में लेना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, अदरवाइज when you don't take proper diet you suffer from n number of diseases, and you must have noticed कि जो लोग diseased हैं, जिनको बीमारियां हैं, they are more prone to coronavirus. Okay, so build up your immunity by taking proper diet. So ये आपको दिख रहा है प्रोटीन्स जो है ये हमारी बॉडी में, हमारे सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हमें कोई चीज़ चाहिए बॉडी में, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं प्रोटीन को। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है, प्रोटीन को अगर हमने हाइड्रोलाइज किया तो हमें क्या मिलना चाहिए? बहुत सारे अमीनो एसिड के यूनिट्स, क्योंकि प्रोटीन कैसे बना हुआ है? अमीनो एसिड से। कौन एंजाइम है जो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगी अमीनो एसिड में? तो प्रोटीन को कन्वर्ट करने वाली एंजाइम 2 है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये जो वर्ड है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, इसको लिख के रख लो। काइंडली नोट डाउन दीज 2 एंजाइम बिकॉज इन वन ऑफ योर एमसीक्यू यू डेफिनेटली कम प्रोटीन लिखा रहेगा एंड अमीनो एसिड लिखा रहेगा, and enzyme कौन से हैं which will convert protein into amino acid. So at that time you have to remember these 2 enzymes, pepsin and trypsin. Okay, ये सब फंक्शंस है प्रोटीन के, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें पता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, आपके बॉडी में जितनी चीजें है, हर चीज जो है वो प्रोटीन है नेचर में। चाहे इंसुलिन ले लो, चाहे हार्मोन ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी बॉडी में मैक्सिमम चीजें जो बनी है आपकी बॉडी में, दैट इज मेड फ्रॉम प्रोटीन ओनली। अब हम अमीनो एसिड पढ़ते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकती है।
तो अमीनो एसिड, ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है इस पर फोकस करिए आप, ठीक है, ये राइटिंग मटेरियल पे मत जाइए, वो मैं आपको यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोटीन, ये जो अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है, इसमें आपको दिख रहा है कि अमीनो एसिड के पास में एक अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, और एक कार्बोक्सिल COOH ग्रुप है, मतलब एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, और ये जो C है ये कायरल कार्बन है, ठीक है, समझ गई बात? एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप और कायरल कार्बन, बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है। और अमीनो एसिड, ये दो फंक्शनल ग्रुप है जो पूरा आगे का जो है इस पे डिपेंड करता है। और अमीनो एसिड क्या क्या आपको दिख रहा है? कार्बन दिख रहा, हाइड्रोजन दिख रहा, ऑक्सीजन दिख रहा, नाइट्रोजन दिख रहा, कभी कभी सल्फर भी हो सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड के अलग अलग नाम भी हैं, और हम अमीनो एसिड को 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। अमीनो एसिड्स जो है दे आर जनरली रिप्रेजेंट बाय 3 लेटर, है ना, जैसे ग्लाइसिन है तो हमने क्या इसको रिप्रेजेंट किया? GLY। हमने क्या बोला? अमीनो एसिड को आप 3 लेटर सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक 1 लेटर कोड है। ग्लाइसिन का G, एलानिन का A, वैलिन का V, ल्यूसिन का L, ये सब क्या है? अमीनो एसिड्स हैं, ठीक। ये अमीनो एसिड्स जो है, आप ये दो एस्ट्रिक मार्क वाले जो है ना, ये असेंशियल अमीनो एसिड है। असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड का क्या मतलब होता है? असेंशियल मतलब जो आपको लेना है बाहर से, आपकी बॉडी वो अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं करती है, इसीलिए आपको बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है, क्योंकि हर अमीनो एसिड जो है आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, आपको बाहर से सप्लीमेंट लेना है, बाहर फूड से, खाने की चीज़ों से वो आपकी कमी को पूरा करना है आपको, ठीक है। और ये जो 1 लेटर कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रटने की जरूरत तो है ही नहीं। अगर ग्लाइसिन लिखा है तो आपको पता है G लिखना है, एलानिन है तो A लिखना है, वैलिन है तो V लिखना है, ल्यूसिन है तो L लिखना है, ये कोई रटने की बात तो है नहीं, ठीक। आइसोल्यूसिन है तो I, आर्जिनिन, अब क्योंकि A 2 बार आ रहा है, एलानिन भी और आर्जिनिन अब 2 एक ही वर्ड है, लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम R से डिनोट करते हैं। तो ये जो अलग लिखे हुए हैं ये कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट इज 1 लेटर कोड फॉर टायरोसिन? व्हाट इज 1 लेटर वर्ड फॉर सिस्टीन? व्हाट इज 1 लेटर वर्ड फॉर ग्लूटामिन? तो आपको इस जगह पे याद रखना है कि अगर दो अमीनो एसिड एक ही फर्स्ट लेटर वर्ड सेम है तो आप उसका 1 लेटर कोड अलग रखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बार एग्जाम में आया था ये, व्हाट इज द 1 लेटर कोड फॉर ट्रिप्टोफैन? अब आप T मत लिख देना, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है W, ठीक। बाकी जहाँ पे एक एक ही H रहेगा, प्रोलीन है तो P रहेगा, क्योंकि P से और दूसरे कोई है नहीं ज़्यादा। यहाँ पे फिनिल एलानिन है तो ये F से हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप जो है अलग 1 लेटर कोड जो है सिर्फ उसको याद रखेंगे, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? केवल वो वाले 1 लेटर कोड जो अलग है, जो बाकी G से ही स्टार्ट हो रहे, A से ही हो रहे, इसे आप याद करके क्या करेंगे? जो 1 लेटर कोड अलग डिफाइन हो रहा है उसको आप याद रखेंगे। जैसे ट्रिप्टोफैन में यहाँ पे आप टी नहीं लिख रहे हो, W लिख रहे हो, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब अमीनो एसिड जो है, आपने पढ़ा कि अमीनो एसिड के पास में NH2 ग्रुप है, COH ग्रुप है, तो अगर दोनों सेम मात्रा में है, NH2 ग्रुप भी उतना ही है जितना COH ग्रुप है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है कंपेयर टू अमीनो तो वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है कंपेयर टू ये COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो आपका जो है बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उसको 3 में क्लासीफाई करते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। हाँ, अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी याद करनी पड़ सकती है कि बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है और एसिडिक कौन सा है। जनरली IC जहाँ दिख गया तो थोड़ा थोड़ा याद रखना कि वो एसिडिक में आएगा, ठीक। हाँ, अब केवल सिस्टीन है, जैसे सिस्टीन और मिथियोनिन है, सिस्टीन याद रखना, ये 2-3 बार एग्जाम में आया है। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें S है तो सिस्टीन, एल्कोहलिक OH ग्रुप है जिसमें तो सीरीन, टायरोसिन 2-3 बार आ गया है JEE वगैरह में, और दूसरी जो CT एग्जाम होती है उसमें कई बार ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना
इन्होंने ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे हैं। भले ही एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड पे कम क्वेश्चन है, लेकिन सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन पे क्वेश्चन हो चुका है, टायरोसिन आया हुआ है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, इमिडाजोल ग्रुप है हिस्टीन, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आप इस तरीके से करेंगे, अगर आप ये क्लिक करके रख लेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिलेगी इस स्लाइड से। नेक्स्ट, ये ज़्यूटरायन पे क्वेश्चन हो सकता है। ज़्यूटरायन पे आप क्या करेंगे, न्यूट्रल स्पीशीज है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज लगे, केवल इतनी बात ध्यान में रखिए। ज़्यूटरायन जहाँ दिखा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आपको दिख रहा है, एक ही आयन पे है, इसको हम ज़्यूटरायन कहते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, जैसे जितनी भी आपकी अमीनो एसिड्स हैं ना, अमीनो एसिड अगर मैंने आपसे यहाँ बोला था ये C जो है कायरल कार्बन है, मतलब ये जितने भी अमीनो एसिड है ये सारे की सारे जो है ऑप्टिकली एक्टिव हुए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने H लगा दिया तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब चारों हाथों में कार्बन के, दो हाथ में तो सेम हो गया HH, तो ये इनएक्टिव हुआ, राइट। तो केवल एक ही अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अदरवाइज जितने अमीनो एसिड है ग्लाइसिन को छोड़कर सारे की सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक। हाँ, अब इसमें पेप्टाइड में हमें पता है दो अमीनो एसिड कैसे लिंक्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज मतलब CONS लिंकेज। ये MCQ मैंने लिखा है, इसका मतलब है ये एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार। CONS लिंकेज कौन सी हुई? पेप्टाइड लिंकेज, ठीक। ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर प्रोटीन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर में। इनमें हमें क्या बात याद रखनी है, फाइब्रस और ग्लोबुलर में, फाइब्रस जो है इसमें कैसे लिंक्ड है चेन्स, हाइड्रोजन और सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ग्लोबुलर में कौन सी है, ये आपका MCQ है। जो मैंने बोल्ड करके रखा है दैट इज योर MCQ। यहाँ पे बॉन्डिंग का है कि बीच में दो पेप्टाइड लिंकेज, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड, यहाँ हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, वेंडर वॉल, डायपोल इंटरेक्शन, ये सभी है, ठीक। फाइब्रस जो है वो पानी में घुलती नहीं। फाइब्रस कहाँ हुए? हमारे नाखून में, हमारे बालों में, वुल में, सिल्क में। कभी ये घुलते हैं क्या पानी में? नहीं, नहीं घुलते, ये सब इनसॉल्युबल है। ग्लोबुलर जो है वो पानी में घुलता है, ठीक है। इंसुलिन, आपको पेपर में ये जो मैंने हीमोग्लोबिन रेड कलर से किया है ना, इसका मतलब है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज डैश रहेगा और एग्जाम्पल रहेंगे फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। आपका आंसर आना चाहिए हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलिन ग्लोबुलर, इंसुलिन ग्लोबुलर, एल्बुमिन ग्लोबुलर, केराटिन फाइब्रस, मायोसिन फाइब्रस, ठीक है। फिर अगर हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर से, तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी आपको दिख ही रहा है एकदम सिंपल, उसको और फोल्ड कर दो तो बन जाएगा सेकेंडरी, और फोल्ड कर दो तो बन जाएगा टर्शरी, और फोल्ड कर दो तो बन जाएगा क्वाटरनरी। ये दोनों स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है ना। अब ये जो मैंने ब्लू से करा है, आप केवल वही बात पे ध्यान रखेंगे। प्राइमरी मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्राइमरी मतलब क्या सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन, ठीक। अब मतलब क्या हुआ कि अमीनो एसिड प्रोटीन में कैसे जुड़े हुए हैं, पहला प्रोटीन कौन सा है, दूसरा प्रोटीन कौन सा है, तीसरा कौन सा लगेगा, इस तरह से, ठीक। जैसे इंसुलिन 61 अमीनो एसिड से बना है, हीमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। मतलब सोचिए आप, गॉड ने हमारी बॉडी कितनी सही, कितनी अच्छी हमारी मशीनरी है। ये अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन में जो है इसका सीक्वेंस रहता है कि अभी एलानिन लगेगा, अभी वैलिन लगेगा, अभी ल्यूसिन लगेगा, ऐसे 574 अमीनो एसिड लगेंगे तब आपका हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये अमीनो एसिड में एक भी गड़बड़ हुई, ठीक है, सपोज ग्लूटामिक एसिड लगना था और लग गया दूसरा अमीनो एसिड वैलिन, तो वो पर्सन विल सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग? मैंने बोला सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज प्राइमरी स्ट्रक्चर,
ठीक, ये अमीनो एसिड जो है ये बताएगी आपको कितनी प्रॉब्लम्स होगी आपकी बॉडी में अगर ये सीक्वेंस अमीनो एसिड का गड़बड़ाता है। ठीक है, चेंजेस आते हैं उसमें, एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा अमीनो एसिड लग जाता है बॉडी में, तो यू कैन सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस। जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिखा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग गया अमीनो एसिड, तो उसको सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल समझता है ना, हसिया शेप के जो सेल रहते हैं, फिर उनको अगेन एंड अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि आपको अपनी कितनी केयर करनी है, कितने सही ढंग से आपको अपना आहार और अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू शेप, बस उस पर याद रखो, और फोल्डिंग, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रहेगा बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स, इसको याद रखिए। टर्शरी स्ट्रक्चर और फोल्डिंग, प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड किया, सेकेंडरी बना, सेकेंडरी को और फोल्ड करो, फोल्डिंग करते जाओ, सेकेंडरी फोल्डिंग बनेगा, एक ज्योमेट्री आपको मिलती है। इसमें आपके एग्जांपल आते हैं फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए कौन सी बॉन्ड है, कितनी बॉन्ड से ये सब बंधे रहेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगी, डाइसल्फाइड भी रहेगी, वेंडरवॉल भी रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी रहेगी, ये सब बॉन्ड इसमें मिलेगी आपको टर्शरी में। क्वाटरनरी में और टर्शरी को और फोल्ड करो तो आपको मिल जाएगा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी। इसका एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हम और क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव में। सिंपल प्रोटीन मतलब प्रोटीन को अगर हमने हाइड्रोलाइज किया तो हमें केवल अमीनो एसिड मिल रहा है। अगर हमने प्रोटीन को हाइड्रोलाइज किया और हमको अमीनो एसिड के साथ में कुछ नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मिल रहा है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह का प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और डिराइव प्रोटीन जो है वो डीनेचर प्रोटीन में हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड जो दी है ये इसको सपोर्ट करने के लिए दी है। हम आगे बढ़ेंगे। फंक्शंस जो है प्रोटीन के, जैसे मैंने आपको बताया हमारी पूरी बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, चाहे हमारे बाल हो, हमारे नेल्स हो, हीमोग्लोबिन हो, इंसुलिन हो, हार्मोन्स हो, कोई भी चीज हो, दे आर ऑल मेड फ्रॉम प्रोटीन। वही चीज यहाँ पे बताई गई है स्लाइड में। देन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को सिंपल एक लाइन में मैं बोलूंगी कि प्रोटीन्स जो है वो एक्टिव हैं। ठीक है, अगर हमने उसको हीट किया, हमने टेम्परेचर चेंज किया, हमने कुछ केमिकल उसमें ऐड किया प्रोटीन्स में, ठीक है, मान लो एग है, ठीक है, एग है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है। अगर हमने एग को बॉईल कर दिया, अब वो एग लाइफ दे सकता है क्या? यू विल नॉट गेट, चिक तो निकलेगा नहीं वो एग में से, क्योंकि अगर हमने बोला एग तो मतलब प्रोटीन है वो, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ है। अगर हमने वो एग को बॉईल कर दिया तो पूरा व्हाइट पार्ट जो है वो कोएगुलेट हो गया, पूरा डीनेचर हो गया, अब वो लाइफ गिविंग नहीं रहा। तो क्या हुआ है, प्रोटीन में फिजिकल चेंजेस आ गए, बायोलॉजिकल चेंजेस आ गए। हाँ, केमिकल चेंजेस नहीं आए रहेंगे, लेकिन फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आ गए। अब ये वाला जो इससे हम टर्म बोलते हैं डीनेचुरेशन। सेकेंड बात जो ध्यान रखनी है, डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हमने बोला एग बॉईल किया, प्रोटीन में चलो दही बनाई, दही, ये जो भी है इसमें चेंजेस हो रहे हैं, डीनेचुरेशन हो रहा है प्रोटीन का, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। बस ये दो बात गांठ बांध के रखेंगे, डीनेचुरेशन मीन लॉस इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर पूरे फिनिश, डिस्ट्रॉय, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसका हमेशा एग्जांपल एक से याद रखना। प्रोटीन कौन सी टेस्ट देता है? बायोरेट टेस्ट देता है, एनहाइड्रिन टेस्ट देता है, ज़ेंथोप्रोटिक। ये आपको एग्जाम में आती है। ठीक है, ज़ेंथोप्रोटिक तो 2-3 बार आई है, जिसमें प्रोटीन में अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला तो आपको येलो कलर मिलता है, जो बताता है, मतलब आपको कैसे लिखा रहेगा, X plus concentrated nitric acid gives yellow color. So this X is carbohydrate, protein, fats, क्या lipids है, क्या है वो बताओ. So at that time you should understand that it is protein. Similarly, X plus anhydride gives violet color. So this X is carbohydrate, protein, fats, this protein. Similarly here, कभी-कभी हो सकता है biuret test is given by, so you have to write it is given by proteins. I hope I am very clear. ये हमने पढ़ चुके हैं।
प्रोटीन्स आर फाउंड टू बी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अल्फा एंड अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज बाय, हमें पता है कौन से बॉन्ड्स उसमें रहते हैं, और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, देखो हमने यहाँ पे लिखा ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही पूछा मैंने, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पूछा, ये क्वेश्चन आया था एक जेडबल क्वेश्चन में, ठीक है, उसी से मैंने कॉपी किया है। इन चारों में से बताइए एसिडिक कौन सा है, कोई दिक्कत है इसमें? एसिडिक मतलब कौन सा रहेगा, जिसमें एक COH ग्रुप वाला जो है वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू बेसिक ग्रुप। यहाँ पे तो दोनों सेम नंबर पे है, तो डेफिनेटली ये एसिडिक नहीं है। ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 2 COH ग्रुप मिल रहे हैं, मतलब ये चांसेस है एसिडिक के। यहाँ पे दोनों सेम है, NH2 एक है, COH ग्रुप है, मतलब ये न्यूट्रल है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहे हैं, मतलब आंसर क्या हुआ 1 और 4, ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। वेरी सिंपल, इज़न्ट? इसमें से कौन सा सही है बताएंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल अमीनो एसिड कंटेन 1 कायरल सेंटर, सही है ये, अमीनो एसिड के पास में कायरल सेंटर है सिवाय ग्लाइसिन को छोड़ के, ठीक है। सम अमीनो एसिड कंटेन 1 सम 2, ये होमवर्क है, इसको आप करके रखेंगे। जब क्या करना, आप एक एक को क्रॉस करते जाइए, कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप आंसर वाइंड अप जब करेंगे योर आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है। सम अमीनो एसिड कंटेन 1 while some amino acid contain more than 1 and some may not contain, जैसे ग्लाइसिन। फाइब्रस एसिड में, फाइब्रस प्रोटीन में डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। मैं डायरेक्ट आंसर पे अभी कर रही हूँ। वी आर लर्निंग लेट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन नाखून नेल्स में भी रहता है, स्किन में भी रहता है, मसल बनाने के काम में आता है, लेकिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में उसका रोल प्ले नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि अगर हमने अमीनो एसिड लिया, उसका सोल्यूशन लिया, बहुत सारे अमीनो एसिड है, एक कंटेनर है जिसमें अमीनो एसिड है बहुत सारे, और हमने उसमें करंट पास किया, तो कौन सा अमीनो एसिड कहाँ जाएगा, कौन एनोड में जाएगा, कौन कैथोड में जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो वो फेट क्या होगा अमीनो एसिड का। जैसे आपके पास में एसिड है, ठीक है, अब ये एसिड है तो ये एनोड की तरफ जाएगा, ये बेस है कैथोड की तरफ जाएगा। और ये वाला जो आपको बोला है एनालिसिस पास मिक्सचर, एलानिन केस में लिखा है, देखिए आइसोइलेक्ट्रिक 0.6, ग्लूटामिक 3, आर्जिनिन 10, ठीक है। ये 3.2 और ये 10 से आपको समझ में आ रहा है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। एसिडिक है, ये एनोड की तरफ जाएगा, ये बेसिक है, जब करंट पास करेंगे तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। और ये एलानिन जो है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बेटा, ऐसा पीएच रेंज जहाँ पे अमीनो एसिड के पास में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ना तो ये कैथोड की तरफ जाएगा ना तो ये एनोड की तरफ जाएगा, ठीक। तो इनमें से अब आप अपना आंसर बिल्कुल क्लियरली सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनमें आपका बेस्ट जो है वो फर्स्ट जाता है। ग्लूटामिक एसिड एनोड की तरफ जाएगा, आर्जिनिन कैथोड की तरफ जाएगा, और एलानिन जो है वो कहीं नहीं जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा क्योंकि वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है। ये खींच लो फोटो ये वाले स्लाइड की, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा होते हैं। फिर एंजाइम्स पे जाएंगे। एंजाइम का रोल हम सबको पता है, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन एंजाइम जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। और बहुत स्पेसिफिक रहते हैं एक्शन में, स्पेसिफिक रहेंगे, ये टेम्परेचर सेंसिटिव रहेंगे, पीएच सेंसिटिव रहेंगे। क्यों हम बोल रहे हैं पीएच सेंसिटिव है, जैसे अगर मान लो हमें दही बनाना है, ठीक है, तो दही बनाने के लिए यू नीड स्पेसिफिक एंजाइम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस, उसके पास में एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते दही बनाने के लिए अगर हमारे पास में वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो हम कोई और डाल देंगे एंजाइम, नो, दैट विल नॉट ब्रिंग अबाउट द कन्वर्शन। हर एंजाइम जो रहता है वो स्पेसिफिक है।
कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, उसका अपना अलग एंजाइम होगा। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, उसका अपना अलग एंजाइम होगा। हर एंजाइम स्पेसिफिक है और हर एंजाइम टेम्परेचर पीएच स्पेसिफिक है। अगर दही आप बहुत गर्म दूध में बनाएंगे तो दही नहीं बनेगा, बिकॉज ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर के जो एंजाइम्स है दे गेट किल्ड, आप ये कर्ड विल नॉट सेट। ठीक है, तो एंजाइम दैट कैटालाइजेस, ये माल्टोज को कौन कर रहा है कन्वर्ट? माल्टेज। एक क्वेश्चन आया था, एंजाइम दैट इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। एंजाइम which bring about hydrolysis of triglyceride to fatty acid is lipase। ये एक्सेप्शनल है, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया कि हर एंजाइम जो है वो अपना अलग रोल प्ले करेगी। इन्वर्टेज जो है वो क्या काम करेगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करेगा। पेप्सिन जो है, पेप्सिन इज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, यूरियस इज कन्वर्टेड टू यूरिया, और झाइमेज इज कन्वर्टेड टू कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू एल्कोहल। ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिए है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक रहते हैं और डेफिनेट एक्टिव साइट्स होती है उनकी। ये जो हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था उसमें भी हमने पढ़ा था। ठीक है, वाइटामिन्स जो है हमारी बॉडी में वाइटामिन्स बहुत स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में होती है तो वी सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस। अगर हम क्लासीफाई करते हैं, आपको पेपर में आएगा तो नहीं क्लासीफाई करो, है ना, आपको बस 1-2 चीज़ समझनी है। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब ADEK, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मतलब BN, समझ आ गई इतनी बात? फैट सोल्यूबल ADEK, वाटर सोल्यूबल B and C। ठीक, जितने भी वाइटामिन्स है हमारी बॉडी वाइटामिन्स को स्टोर नहीं कर सकती। हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू सभी वाइटामिन्स जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसलिए आपको आपकी डाइट में डेली वाइटामिन्स लेना है। राइट, केवल एक वाइटामिन है, विटामिन B12, जो हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है। उसके अलावा बाकी सारी जो है विटामिन, स्पेशली B और C अगर हम बोलेंगे, ये हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। इसलिए आपको रेगुलरली अपनी डाइट में इनको लेना है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है ADEK, ये थोड़े थोड़े हमारे लिवर में, एडिपोस में स्टोर हो सकते हैं। बाकी वाटर सोल्यूबल जो है ये स्टोर नहीं हो सकते, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक, केवल B12 है वो रह सकता है, इसीलिए आप अपनी डाइट में हमेशा लें। और एक विटामिन ऐसा है जो ना तो फैट सोल्यूबल में आता है ना तो वाटर सोल्यूबल में आता है, वो है बायोटीन। ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब ये इतनी लंबी जो लिस्ट है ये अब मैं पढ़ाऊंगी नहीं आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने अपनी लोअर क्लास में पढ़ी है कि अगर मैंने विटामिन ए नहीं लिया तो मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, मुझे नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ये आई विल नॉट स्टडी। मैं आपको केवल एक ट्रिक बता देती हूँ, बस आप उस हिसाब से पढ़िए। विटामिन ए आपको कभी नहीं लिखा रहेगा MCQ में, इट विल ऑलवेज बी रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 नहीं लिखा होगा, थायमीन लिखा होगा, फोकस ऑन दैट। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन, इस पे फोकस रखिए। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, इस पे फोकस रखिए। B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 पे कई बार 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी स्टोर कर सकती है। ठीक है, बाकी सब विटामिन जो B कॉम्प्लेक्स के है वो यूरिन से बाहर हो जाते हैं बॉडी से। तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट एक मेटल है। 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, विटामिन C जो है उसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एक ऐसा एसिड का नाम बताओ, विटामिन C जो है उसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम खट्टी चीज़ें कम लेते हैं अपनी डाइट में तो मसूड़ों से खून निकलता है, कम ब्लीडिंग होती है। विटामिन D, सनशाइन विटामिन, मॉर्निंग की धूप लीजिए, इसमें
आपको विटामिन डी मिलता है तो जो हड्डियां आड़ी टेढ़ी होती है, डिफॉर्मिटी आती है, वो नहीं रहेगी। इसलिए दादी माँ जो होती है, न्यूबॉर्न बेबी को जब होता है पैदा तो उसको बाहर धूप में लेके बैठते हैं। क्यों? ताकि बेबी को विटामिन डी मिल सके, ठीक है, नेचुरली, ताकि उसकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ये जो है मैंने लिखा है, ये लेसन मैंने लिया इसीलिए है कि एट दिस टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है बेटा, ये सारे विटामिन्स, ये सारी चीज़ें अपने फूड में इनकलकेट कीजिए। नहीं होती है तो सप्लीमेंट लीजिए, बट कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। लास्ट आते हैं हम न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड पे जो मुझे कवर करना है, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है डीएनए और आरएनए है, उस पर फोकस रखेंगे। डीएनए, अगर हमने न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज किए तो आपको 3 चीजें मिलती है। यहाँ पे फोकस करो बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 3 चीजें मिलेंगी, एक बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये 3 चीजें मिलेंगी। अगर से आपका न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो आपका शुगर रहेगा राइबोस। अगर डीएनए तो ये शुगर जो है, ये शुगर रहेगी डीऑक्सी। दोनों में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। बताओ राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में कहाँ अंतर दिख रहा है आपको? कौन से कार्बन पे? कार्बन 2 पे। यहाँ H और यहाँ OH है, यहाँ दोनों जगह HH है, ठीक है, ये डीएनए में, ये आरएनए में, ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखिए। डीएनए में 4 बेस है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में भी 4 है बेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल है। बस ये बात फोकस करिए, ATGC AUGC, AGTC AGUC। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारी टीचर ने हमको ATGC सिखाया था, ATGC और AUGC, ठीक है, इस तरह से याद रखिए। ATGC इसलिए क्योंकि A और T हमेशा बाइंड होते हैं और G और C हमेशा एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, इसलिए बेस्ट वे है ATGC AUGC, ठीक। नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, गुआनिन, पिरामिडीन्स जो है थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल आरएनए में रहेगा। ये कुछ बताने का जो है उसमें मुझे सिर्फ यहाँ पे फोकस रखिए। न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाय फॉस्फेट, बस यहाँ पे आता है 5 कार्बन और 3 कार्बन, ये पेपर में आता है। फॉस्फेट लिंकेज काय में है 5 and 3 कार्बन ऑफ पेंटोज, बस, ठीक है। हाँ, इस पे क्वेश्चन आएगा आपका जेनेटिक कोड, है ना। देखो 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है एक अमीनो एसिड। लिख लो, 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है एक अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड में आप इसको एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन मत समझो। ये जब न्यूक्लियोटाइड है मतलब इसके अंदर तीनों चीजें हैं। हाँ, इसके अंदर क्या क्या है? बेस भी है, शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, वैसे समझ के चलना। ईच कोडॉन, ये देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ईच कोडॉन, ये 3 के इसको हम एक कोडॉन बोलते हैं। ईच कोडॉन स्पेसिफाइज 1 अमीनो एसिड, ये कोडॉन है। 1 कोडॉन स्पेसिफाइज 1 अमीनो एसिड। एक कोडॉन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड। देखिए डीएनए सीक्वेंस, ये डीएनए सीक्वेंस में क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं डायरेक्टली आपके साथ कवर करूंगी अभी, ये सब आपको पता है। ये इसमें क्या फोकस करना है आपको? ATGC दिख रहा है आपको, ATGC, और क्या दिख रहा है? AT में डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन के और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बस ये बात पे फोकस करो। फंक्शन क्या रहते हैं डीएनए के, बताने की जरूरत तो है नहीं वैसे, बट स्टिल हेरिडिटी, रेप्लिकेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, एज अ ब्लूप्रिंट, डीएनए बनाने के, प्रोटीन बनाने में, सब में डीएनए का रोल प्ले होता है। आरएनए जो है, एमआरएनए, आरएनए 3 तरह के हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए, हम इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर। इस पे क्वेश्चन होता है। एमआरएनए का क्या काम है? एमआरएनए का काम है इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से राइबोस को देना, डीएनए से राइबोस को मैसेज देने का काम करता है। मैसेंजर है ना, ये मैसेज ट्रांसफर करेगा डीएनए से राइबोस में। राइबोसोमल का क्या काम है? इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमर, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। आपको एमसीक्यू आएगा, आरआरएनए का क्या काम है?
प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए का क्या काम है? कैरियर है, अमीनो एसिड को ले जाना, कैरियर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर करना। नाम से ही बेटा आप समझ जाओगे टी का काम क्या है। टी मतलब ट्रांसफर करना अमीनो एसिड, एम मतलब मैसेज ट्रांसफर करना आरएनए से राइबोसोम्स में, और आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, इसका काम है प्रोटीन बनाना। आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आएगा पेपर में। व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? हमेशा इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये स्लाइड में मैं 1 सेकेंड के लिए पॉज ले रही हूँ, ये क्वेश्चन याद करो। व्हाट इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? ठीक है, इंफॉर्मेशन कहाँ से फ्लो हो रही है? डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। आपको पेपर में उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा, प्रोटीन टू आरएनए टू डीएनए, आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। अगर नहीं होता है तो फिर ये बीमारियां से हमें भुगतना पड़ेगा। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स अगर उन्होंने बोला 2 चीजें बताओ एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम प्रोटीन के बने हैं। मैंने आपको बताया एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीजें प्रोटीन से बनी होती है। तो एंजाइम प्रोटीन है, ये भी एक बात सही है। दूसरा, एंजाइम हमारी बॉडी में क्या प्ले करते हैं पार्ट? कैटलिस्ट है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, निकल कैडमियम नहीं है, इसलिए हम इसका आगे का नाम बोल देते हैं बायो कैटलिस्ट है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगी, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगी। एंजाइम नहीं रही हमारी बॉडी में तो एक रोटी का निवाले को भी आपको डाइजेस्ट करने में सालों साल लग जाएंगे। ठीक है, आरएनए, डीएनए और आरएनए में दोनों में पेंटोज शुगर है और दोनों अटैच्ड है 5 और 3 कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अगर से डीएनए मॉलिक्यूल में कहीं गड़बड़ होती है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में गड़बड़ होती है, तो उसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन। अगर एडिनिन से, एडिनिन अगर मैंने बोला अगर आपको कोई साइड से न्यूक्लियोटाइड बनाना है, ठीक है, यहाँ देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। व्हेन एडिनिन इज अटैच्ड टू राइबोस शुगर, एडिनिन को, एडिन मतलब क्या हुआ आपका? बेस, आपने शुगर में अटैच किया, ये बेस है, शुगर में अटैच किया, आपको मिल गया एडिनोसिन मतलब न्यूक्लियोसाइड। अगर आपको ये न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आपको तीसरा कंपाउंड और क्या चाहिए? एक आपको चाहिए रहता है बेस, एक आपको चाहिए रहता है शुगर, एक आपको चाहिए रहता है फॉस्फेट ग्रुप। मतलब यहाँ पे आपका एडेनिन बेस हो गया, ये शुगर हो गया, अब आपकी क्या चीज की कमी है उसको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए? फॉस्फेट की। ठीक है, ऑक्सीजनेशन रॉन्ग हो गया, बेस तो ऑलरेडी है ही एडेनिन, हाइड्रोजनेशन तो कहाँ से आया पता नहीं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर इतना सारा पढ़ा ना, ये सब और ये सब क्या है, कैसे ये डीएनए, इस पे जो एक केवल क्वेश्चन बनता है ये आपको समझ में आएगा इस आंसर से। ठीक है, आपको पूछा डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ दिस इज ट्रांसक्रिप्ट ओवर mRNA-S। अगर इसको डीएनए अगर मैसेंजर आरएनए इसको किस तरह से रिलेट करेगा, कैसे ट्रांसक्रिप्ट करेगा, कोड क्या है, किस ढंग से करेगा, तो आपको पता है ATGC होता है। ठीक है, ATGC, तो ATGC में C के साथ G बन गया, करेक्ट है, T के साथ A हो गया, GC, ATGC बराबर चल रहा। अब A के साथ T बनना चाहिए, लेकिन आरएनए में T होता है क्या? आरएनए में T नहीं होता, T की जगह क्या होता है? यूरासिल। तो आप यहाँ पे आपका बनेगा A के साथ U, फिर T के साथ A के साथ फिर से T तो रहेगा नहीं, U बनेगा, GCCG। इस तरह का एक क्वेश्चन 100% आपको टेस्ट में रहेगा। आपको सिर्फ एक बात रखनी है, ATGC,
और जब mRNA उसको ट्रांसफर कर रहा है, मैसेंजर RNA है, तो R में कभी भी T जो है, ये जो है T नहीं आएगा, T की जगह पे हमेशा क्या रहेगा, U। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह यहाँ T लिखना चाहिए था, लेकिन आप T नहीं लिखोगे, T की जगह पे क्या रहेगा, U। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। ओके, चलो अब 10-15 मिनट में हम थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बार मोटा मोटा ऊपर से देख लेते हैं, है ना। तो वी फिनिश विद द यूनिट बायोमोलिक्यूल। आई होप कि मैसेज विच आई वांटेड टू गिव यू regarding that unit, purpose of taking that unit is please do take care of yourself, inculcate in your diet everything, immunity को boost up करो and keep yourself safe from this pandemic. Okay, now coordination compound जो है हम देखते हैं, 15-20 मिनट हम ले लेते हैं, हमारे पास 15 मिनट है और अभी। तो जब मुझे लगता है एक नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये टॉपिक तो 100% रह गई, देयर इज नो डाउट कि IUPAC नेम नहीं पूछेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो हम क्विकली देखते हैं। तो ये कंपाउंड देखने से आपको सबसे पहला जो चीज समझने की है, वो नेम करने के पहले अपने आप से पूछना, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। अब आपको कैसे समझ में आया कैटायोनिक है कि एनायोनिक? Cl नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में हम हमेशा अंदर से, बॉक्स के अंदर से नेमिंग स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं बाहर वाले नेम से, है ना। तो IUPAC में अब आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स है, पहली चीज मुझे समझ में आ गई कि ये एनायोनिक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। बस मेरा काम खत्म हो गया। मेरे पास जो n नंबर ऑप्शन है उसमें मैं देखूंगी कि अंदर वाला से स्टार्ट कहाँ हुआ। ठीक, अब यहाँ हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, 5 है पेंटा अमीन, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिगेंड जो है वो है क्लोरो तो पहले नहीं लिखेंगे ना। आपके हिसाब से क्या हमें पहले लेना चाहिए, ये वाला लिगेंड कि ये वाला? हमें पहले लेना चाहिए अल्फाबेटिकली। तो अमीन जो है वो अल्फाबेटिकली में A पहले आता है, C बाद में आता है, तो हम पहले ये लेंगे पेंटा अमीन, फिर क्लोरो, फिर कोबाल्ट मेटल, और ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लगता है आप सबको निकालनी आती है इस स्टेज तक का, और उसके बाद में क्लोराइड, है ना। इजी, पहले समझ लो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। वो नॉलेज अगर आपकी क्लियर है, फिर आप समझो कैटायोनिक है तो अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर से चालू करना है। कॉम्प्लेक्स के अंदर में भी अल्फाबेटिकली जाओ, कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लो और फिर नेमिंग स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला जैसे है ये भी दिख रहा है मुझे, तो ये तो कैटायोनिक ही दिख रहा है। Cl बाहर माइनस है मतलब ये कैटायन है, ये एनायन है, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो मतलब मुझे अंदर से चालू करना है नेमिंग करना, ठीक। अब मेरे पास में दो लिगेंड है, अमीन भी है और नाइट्रो भी है। तो अब मुझे पहले अमीन लेना पड़ेगा, 5 है तो पेंटा अमीन। अब ये जो नाइट्रो है, मुझे पता है ये नाइट्रो जो है ये NO ऐसे लिखते हैं इसको, ONO, ठीक है। अगर O से जुड़ा रहेगा तो हम इसका नाम देते हैं नाइट्रिटो, N से जुड़ा रहेगा तो नाइट्रो। ये वाले कंपाउंड में ये O से जुड़ा होता है, ठीक है। O से जुड़ा है इसलिए इसका नाम रहेगा नाइट्रिटो, ना कि नाइट्रो। अगर N से जुड़ा होता तो नाइट्रो बोलते, O से जुड़ा होता मतलब डोनर कौन है, यहाँ पे आपके पास 2 डोनर है ना, N भी डोनर है, O भी डोनर है। अगर O डोनर है तो आप बोलोगे नाइट्रिटो, N डोनर है तो आप बोलोगे नाइट्रो। फिर कॉम्प्लेक्स का चलो नाम करेंगे, नेमिंग सेरेमनी क्या होगी इसकी, 5 है तो पेंटा अमीन नाइट्रिटो क्योंकि O डोनर है, देन कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और देन क्लोराइड, ठीक। ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पर पे ये K पॉजिटिव है तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया नेगेटिव, ठीक है। K पॉजिटिव है इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया नेगेटिव, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए नेमिंग कहाँ से करेंगे, बाहर से। तो पहला नाम आएगा K का, ट्राई पोटेशियम मत लिखना, ठीक है। पोटेशियम पहले लिखेंगे,
और फिर आएंगे ये इसमें 6 कार्बन, 6 है इसलिए हेक्सा साइनो फेरेट। याद रखिए मैंने ये 8 में बोल्ड किया है। ये बोल्ड करने का रीजन क्या है मेरा, मुझे आपको बताना है कि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में नाम जो होता है मेटल का वो 8 में कन्वर्ट होता है। हमने यहाँ 8 में करा क्या, यहाँ हमने लिखा क्या कोबाल्टेट, नहीं लिखा, कोबाल्टेट नहीं लिखा क्योंकि ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में आप मेटल को 8 में एंड करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। मुझे लगता है मैंने ये जो 3 एग्जाम्पल लिए हैं उसमें मैक्सिमम मैंने आपका नेमिंग कवर कर दिया। ठीक है, अब ये एक चीज है जो समझनी है जो आपको एग्जाम में आएगी। ठीक, मैंने सिर्फ 2-3 पॉइंट ही लिए जो मुझे 100% पता है आपको अटेम्प्ट करनी है। एक, आपको IUPAC नेम अटेम्प्ट करना ही करना है। दूसरा, आपको लिंकेज आइसोमर्स में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आई नो दिस वेरी वेल, इसलिए मैंने लिमिटेड ही उतना ही आपके लिए किया है। ठीक है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट सो मच एट वन टाइम। ओके, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में मैंने आपका फोकस रखा है लिंकेज ऑफ डोनर एटम ऑफ द लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोला है, किसके किसके बीच में लिंकेज है, डोनर एटम ऑफ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल है। इतनी लैंग्वेज नहीं समझने आ रही है तो एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है कि ये जो लिगेंड है ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ में काय से जुड़ा है। अब देखो जैसे जो एम्फीडेंटेड लिगेंड रहते हैं, हाँ, जैसे अपने ये वाला एग्जांपल लिया था, ये भी एम्फीडेंटेड लिगेंड है। एम्फीडेंटेड किसको बोलेंगे, नाइट्रोजन भी डोनर है ऑक्सीजन भी डोनर है। यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन जो लगा है NH3 जैसे रहता है वो भी एम्फीडेंटेड है, एम्फीडेंटेड है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनर है ओ भी डोनर है। अब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स कि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, कौन डोनर है उसके हिसाब से हम उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों एग्जांपल में ये NO2 लिखा N डोनर है, यहाँ पे O डोनर है। इस तरह का अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिखता है जहाँ एम्बिडेंटेड लिगेंड दिख रहे हैं तो उसको सीधा सीधा लिंकेज आइसोमेरिज्म नाम दे देना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या दिख रहा है ये हम पढ़ते ही डेफिनेशन। यहाँ दोनों एग्जांपल देखिए गौर से, यहाँ पे CONH3 है, Cr के साथ ये वाला लिगेंड है। यहाँ पे क्या हो गया, Cr के साथ कौन लग गया NH3 और CO के साथ कौन लग गया लिगेंड Cn। मतलब लिगेंड जो है वो चेंज हो रहे हैं, देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। जब भी लिगेंड इंटरचेंज होंगे तो उसको नाम देंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आई बात। कोऑर्डिनेशन में लिगेंड बदल रहे सेंट्रल मेटल के साथ में। आयोनाइजेशन में आयन आयन एक्सचेंज हो रहा। ठीक है, आयन आयन एक्सचेंज मतलब देखो यहाँ पे SO4 अंदर है Br बाहर है, यहाँ पे Br अंदर हो गया SO4 बाहर हो गया, मतलब आयन आयन जो है वो एक्सचेंज हो रहा है सेंटर ये कॉम्प्लेक्स में, तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। हाइड्रेट नाम से ही समझ में आता है वाटर मॉलिक्यूल, डिफरेंस इन वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ 6 हाइड्रोजन है कॉम्प्लेक्स के अंदर, यहाँ केवल 5 है, दोनों में हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है। तो जहाँ भी आपको डिफरेंस दिखा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में उसको आप हाइड्रेट में करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार, लिंकेज में आपको काय में फोकस करना है, डोनर लिगेंड, लिगेंड में डोनर कौन है। कोऑर्डिनेशन में आपको याद रखना है कि मेटल के साथ में कौन सा लिगेंड है, लिगेंड लिगेंड कहीं कहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। आयोनाइजेशन में आयन आयन एक्सचेंज हो रहा है। हाइड्रेट में पानी जहाँ दिख रहा है वाटर उस पर फोकस करना। अब बताइए ये मैंने आपसे पूछा ये दोनों कौन सा वाला आइसोमर्स है चारों में, कहाँ आपको अंदर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर SO4 बाहर निकल गया और Cl अंदर आ गया। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, Cl जो है वो अंदर हो गया SO4 बाहर हो गया, मतलब आयन आयन एक्सचेंज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स इज डिटरमिन्ड बाय, आपको एक चीज मैं अभी बताऊंगी, एक क्लास स्लाइड पहले हम पढ़ लेते हैं पॉइंट टू रिमेंबर में। प्राइमरी वैलेंसी
ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। अब बोलेंगे प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है? देखिए CO की प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 है, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी अंदर वाली रहती है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी बाहर स्फीयर के और सेकेंडरी वैलेंसी अंदर वाली, है ना। और प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कभी भी आयोनाइज नहीं हो सकती, ये वाली आयोनाइज हो सकती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप कितने भी तरह के ट्विस्ट टर्न वाले आपको क्वेश्चन पूछे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा? लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, ये मैंने आपको करा दिया। ये दोनों में क्या अंतर है आप देखो, बताओ मुझे, ये दोनों में कहाँ अंतर दिख रहा है? ये दोनों में लिगेंड एक्सचेंज हो रही है, इसलिए ये लिगेंड आइसोमेरिज्म है। मैं एक मिनट पॉज रखती हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ लो बात को, ठीक है। सही आई बात समझ में? इसको यहाँ पे हमने, यहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये और ये, ठीक है। CO के साथ में NH3 लग गया, CR के साथ में NH, इसके साथ में ये लग गया, इसके साथ में ये लग गया, दोनों अलग अलग हो गए इसलिए इनका नाम हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जहाँ लिगेंड एक्सचेंज हो गए। मैंने आपको बताया था प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज होती है। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में तो घबराने का नहीं है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर इसका आंसर निकल सकता है, 1 सेकेंड। क्या बोला है? SC ये जो है मेटल और ये आयन, इन चारों में से क्या रहेगा? बस एक बात समझ लो, H2O जो है वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड जो है वो कभी भी जो है फोर्स नहीं करते इलेक्ट्रॉन को ये होने के लिए, ठीक है। अलग अलग ही रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी मतलब अलग अलग रहेगा इलेक्ट्रॉन, अलग अलग रहेगा मतलब डायमैग्नेटिक है। इनमें ढूंढ लो डायमैग्नेटिक कौन सा है, बस वही आपका आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पर CN होता, मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, CN होता, CO होता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते तो वो पेयर करने के लिए मजबूर करते, पेयरिंग होती मतलब पैरामैग्नेटिक, तो आपका आंसर फिर 3rd होता, ठीक है। समझ में आया आपको? इतना कुछ ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने आपको बस बताया कि आप ये सब मत करते बैठना, देयर इज नो नीड, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इसके साथ में क्या है और उसके हिसाब से आंसर सिलेक्ट करो। वीक है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं होने देगा, पेयरिंग नहीं होने देगा मतलब वो क्या हुआ? डायमैग्नेटिक है। पेयर होता तो पैरामैग्नेटिक होता। क्लियर? ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये आपने रट ली है मुझे लगता है। ये मैंने आंसर कहाँ से निकाला? इससे। मुझे पता है H2O वीक है, NH3 थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग है, डायमीन उससे स्ट्रॉन्ग है, NO2 उससे स्ट्रॉन्ग है, CN और स्ट्रॉन्ग है, CO एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। ये सीरीज अगर याद रही तो 1-2 आंसर तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। फोटो खींच लो, आपके 12th में है ये, ठीक है। ये वही इसी के आया, अमंग द फॉलोइंग लिगेंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, ये सीरीज याद रखो। NH3 फिर उससे स्ट्रॉन्ग EN, फिर उससे स्ट्रॉन्ग CN, उससे स्ट्रॉन्ग CO, ये सीरीज आती रहेगी तो ये वाला आंसर भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे और ये वाले टाइप के आंसर भी, दोनों आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते अगर आपको ये सीरीज समझ में आती है तो, ठीक है। और कुछ छूटा है? मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो आई होप कि वॉट एवर इज बीइंग टॉट टू यू, आपने जो बातें मैंने आपको बोली आप गौर करिए, स्ट्रेस करिए, लिखिए। अभी तक आपको इतनी हैबिट हो गई होगी और जहां आपको ऐसे लग रहा था आपने स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, अदरवाइज आपको ये PPT भी जो है सेंड कर देंगे थोड़े दिन में। आई होप कि डेफिनेटली ये जो यूनिट है 7 मार्क का हमने आज कवर कर लिया है। सो डू योर वेल, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।